Hello everyone. Hi, this is Leena, your transformation coach, and I'm again back with another video interview with Mr. Pankaj Asija, my episode 4. And Mr. Pankaj Asija is a peak performance coach and a professional speaker as well. To tell something about him, he lost his father at when he was just 11 months old, and he and his mother and sister were being thrown out of the house. He was homeless, and it was a big struggle that he has reached today to this level. So let's talk to him and know more about him. So hi Pankaj, welcome on my Thank show. you so much, Leena ji, for inviting me to your show. And thank you so much to the audience who will be bearing me for now No, no, couple no. of You couple have of a minutes. wonderful story to share. I think everyone would enjoy it. At least take away a lot from here. This is what I know. So Now this all goes on your questions, how you ask me and how I answer. okay, so let's start. So would you like to tell us, something about yourself, like your introduction? You want to know something about me, like you have already told Yeah. uh, So, when about your I was background, born. like your childhood, what it was, how it was, like when we say, like when I told about it, how it was. Up, The go. childhood, see, the when I was too young, I never knew what the father is. I thought like everyone's families survive like this. Everyone does not have the money. Everyone does not have the house. Everyone lives like this. So as a child, I did not know anything. When we did not have bread to eat, we did not have vegetable to eat. I thought these are the problems in every house. But as I grew up, I came to know, okay, these are not the everyone's problem. These are only the problem with us because we do not have money, because we do not have any strong earning hand. And then I, like, later I realized, like, okay, what is the importance of money? Oh, I see. Like, we need money for the survival. We need money for the food. We do not have money for the school. I remember, like, earlier I used to go a private school where the principal was little known to my mother, and my mother, she did not used to charge money. But the time she got married, my mother had to shift into the school where everyone could speak that I come from Haryana, so they used to speak the Haryanvi language. Haryanvi is a dialect. Basically, they everyone started speaking in the Haryanvi, and I faced problem to understand. And later I realized why I'm shifted to this school, because the school fees is just 5 rupees per month, and my mother could not afford more than that. So this is how the childhood was. I remember some of the days when we did not have. We had chapatis, but we did not have vegetable. So ghee was also very expensive. So we had some water on the chapatis, then salt and chilies, and would make the roll of it and eat it. So this was how the childhood spent. I remember the one incident that my mother told me. My elder sister told me when I was 5 or 6 year old. I'm allergic till today. I'm allergic to sun. If I go in sun, my body start getting rashes. That too, like um, red rashes, and then those rashes even have sometimes watery inside, and they burst. Today too, but today I'm grown up. I know how to take care of myself. But that time the doctor told me to wear the outfit of cotton, and my mother told I would not name the relation. My mother told one of my uncle and first blood relative only, and he needs to get Yeah. the cotton shirt. I have asked in the market that come just of rupees uh, 18-20 rupees. That time the value of money was good, like 18-20 rupees we could buy the things. So that women of that particular man told, the wife of that particular man told, if he does not wear the cotton shirt, he'll not die. So this is how, like, then my mother took the help of neighbors, so somehow I got to wear the cotton shirt. I started improving. So this was the childhood, how I somehow, like, I've just given the little overview of my childhood, how I spent. I know it must have been so difficult, first of all, no father figure, and then the mother struggling to raise two kids. It's really difficult. Whatever time it is, like that time or this time, it's really difficult. But you survived through it up.
मतलब आपने उसमें से भी आज आपने अपने आप के लिए एक मुकाम बनाया है। So how, हम्म what was the change from there to now? Like आपने क्या माइंडसेट रखा? कैसे आज आप इस मुकाम तक पहुंचे? What was the thinking that went behind it? See, I have learned one thing in my life. However the life comes to you, we need to go with the same. We cannot, I mean, we cannot decide to accept things. And when you're in such situation, you are not in the situation. आप तो उस पोजीशन में ही नहीं होगे ना, आपके पास choices नहीं होंगे. You need to just choose it. Go with the same, whatever is happening. So I started accepting the life was coming to me. The way I passed my 10th standard, I passed my 10th standard with good marks. I opted for medical and wanted to become a doctor. But somewhere, like I even qualified the exam but could not join because there was no money to pay to the medical college, and I was getting the admission in semi government medical college. The fees was 70,000 per year. My mother could not afford that. We could not get the bank loan because we did not have any property to give to bank, and we did not have any other document to show to the bank. अब होना क्या था? The life was going like this. अब इसमें चॉइस होना है कि आपको मेडिकल करना है कि नहीं करना. अब तो पता है कि कर ही नहीं सकते. So I left that. Then I started with something else, like air steward management course I did. I worked with Kingfisher Airline. So जैसे जैसे जिंदगी मुझे जो जो चीजें दे रही थी, जो जो opportunities दे रही थी, I was taking each and every opportunity and working with that. There was no pessimism. There was no no. No तो बोलना ही नहीं था किसी चीज को. भाई ये नहीं, ये मैं कर नहीं सकता, ये मैं करना नहीं चाहता. It was not like that. जो कर नहीं सकता, जो फाइनेंशियल तरीके से कर नहीं सकते, वो तो हमारी कंट्रोल में नहीं है. बट जो करना नहीं चाहते वो हमारे कंट्रोल में है, परंतु फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो मैं जब भी कोई भी चीज आई उसको एक्सेप्ट किया. आई डिड नॉट प्लान एनीथिंग इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर. देन केम बैक फ्रॉम मुंबई टू हरियाणा टू टेक केयर ऑफ माई मदर. फिर यहीं पर एक इंस्टीट्यूट शुरू किया. आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी. I was merely 17 and a half that time. And now also I do not plan. I do not plan ki after 1 year I need to reach there, or after 2 year I need to reach there. I believe I need to reach where I deserve to be. काम करना मत छोड़ो, मेहनत मत छोड़ो, सिर्फ उस पे लगे रहो. जो मिलेगा वो आपको पक्का मिलेगा. I mean, I believe in कर्मा, जो भगवत गीता में कहा गया है कि यू कीप डूइंग योर कर्मा. आई कीप डूइंग माई कर्मा विदाउट एक्सपेक्टिंग द फ्रूट्स, क्या फ्रूट मिलने वाला है. बट जब आपका कर्मा बहुत अच्छा होता है तो फ्रूट ऑटोमेटिकली अच्छा होता है. बट मैंने आज की जनरेशन को देखा, वो प्लान करते हैं कि 4 साल के बाद यहाँ होंगे. अब प्रॉब्लम क्या होगी, 4 साल के बाद की तो वो प्लानिंग कर लेते हैं, बट इस बीच में लाइफ की कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो अचीव ना कर पाए. इस बीच में कोई और घटना दुर्घटना उनके साथ घट गई, वो अचीव ना कर पाए. और वो घटना और दुर्घटना के अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके माइंड में तो एक ही चीज है कि मुझे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई नीड टू बाय अ फरारी. पर घटना और दुर्घटना उनके सारे प्लान्स को चेंज कर देती है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तब उनकी जो वर्किंग है वो स्लो हो जाती है, बल्कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पा रहे, और जो अभी घटा है उसके अकॉर्डिंग वो प्लान नहीं कर पा रहे. तो इसीलिए मैंने जिंदगी में कभी ऐसे बड़े प्लान नहीं बनाए. जैसा जिंदगी चल रही है वैसा चलता रहो, बट काम हमेशा उसके अकॉर्डिंग चलते करते रहो. जो जो अपॉर्चुनिटीज, जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिले, नो नहीं कहो. आपको मिला अपॉर्चुनिटीज, हाँ भाई एक्टर बनना है, हाँ बन जाऊंगा. हाँ सिंगर बनना है, कोशिश कर लेता हूँ. हाँ आपको डांसर बनना है, बन जाएंगे. आपको टीचर बनना है, बन जाएंगे. बायोलॉजी पढ़ाना है, हाँ पढ़ी हुई है, थोड़ा सा पढ़ के पढ़ा दूंगा. तो हर चीज को जब आप यस करते हो, यू बिल्ड द एटीट्यूड ऑफ यस एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग. आई थिंक फिर बिना संघर्ष के, आपको पता भी नहीं लगता संघर्ष हुआ, बिना संघर्ष के आप अपनी जिंदगी जी लेते हो. एंड दिस इज हाउ हैपेंड इन माय लाइफ. आई नेवर सेड नो. आई एवरी टाइम सेड यस एंड द थिंग्स केप्ट हैपनिंग. अब तो पता भी नहीं लगा कि कब इस लेवल तक पहुंच गए. जस्ट से यस टू द थिंग्स, थिंग्स वुड हैपन टू यू. It's really amazing, like your thought process and the way you are, putting up things. मतलब आपने जो बताया, सच में मतलब एक it gives a motivation to everyone कि हाँ करो. I know
जब हम कहते हैं कि 4 साल का प्लानिंग करते हैं, इट शुड बी देयर, सम गोल शुड बी देयर, बट अगर नहीं हुआ तो उसकी भी तैयारी रखनी ज़रूरी होती है कि ये नहीं तो भी हम क्या कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड एंड या सॉरी गोल यू सेड कि हाँ गोल जरूरी है होना, बट सबकी जिंदगी के अलग अलग होने। जैसे मेरी जिंदगी का गोल था सर्वाइवल बहुत अच्छे से हो जाए, वो चीजें जो हम मेरी माँ को अपनी शादी के बाद नहीं मिल पाई, पापा के जाने के बाद नहीं मिल पाई, वो कहीं ना कहीं से हम उनको दे दें, तब सारे गोल खत्म हो जाते हैं ना। तो एक ही चीज दिखती है बट एंड, इसको मैं गोल नहीं कहता। जैसे लोग गोल बना लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, मुझे घर लेना है। अब एंड गोल क्या है? दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी गोल। आपका अल्टीमेटली लास्ट गोल, व्हाट इज योर लास्ट गोल? What will you do if you get a house, big house? What will you do? What will you do if you have 5 crore rupees in your account? वो 5 crore rupees गोल नहीं होगा, उसके पीछे कौन सा गोल है, दैट इज अ गोल। और सिर्फ वो एक या दो चीजें ही ऐसी होती हैं, एक या दो गोल ही होता है। जैसे मेरा गोल था कि मम्मी को वो सब देना है जो अब तक नहीं मिला, तो दैट बिकेम इजी फॉर मी। तो मुझे कोई ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो जो मुझे लगा कि ये चीज मम्मी को वो दे सकती है, तो उसके लिए हाँ करते रहो। आपकी बात ठीक है, गोल होना चाहिए, बट गोल ऑफ गोल जिसको हम कहते हैं पर्पस ऑफ योर गोल, अगर वो नहीं है, साइमन सिनिक ने बुक लिखी है स्टार्ट विद व्हाई, अगर वो गोल का व्हाई आपके पास नहीं है, तब तक चीजें करनी डिफिकल्ट होती है। बट अगर व्हाई है तो प्लान चेंज करना भी आसान होता है, क्योंकि आप मंजिल नहीं बदल सकते, रास्ता बदल दो। बट अमेजिंग। हम कई बार क्या करते हैं, मंजिल को ही आ, रास्ता मान लेते हैं और फिर वो बदल देते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती I know, like जो आप बात कर रहे हो, it's so amazing and so motivating me right now. मतलब I know this is going to motivate everyone. बहुत सारे youngsters को आप motivate करते हो. You are a speaker, so that shows from the way you talk. So ये journey कहाँ से start हुई? मतलब आप being a speaker, of course you started your institute, you were doing your bit, बट उसके अलावा जब आप स्पीकर बने, आपने अलग बहुत सारे देशों का दौरा किया, ये कहाँ से स्टार्ट थी। अभी मैंने आपको कहा कि आई नेवर सेड नो टू एनीथिंग। हुआ? हरियाणा में और मेरे ख्याल से पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये चीज है कि जब आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पाते हो तो कहते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हो। तो मुझे स्कूल ने इनवाइट किया, कैन यू कम एंड मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स। तो मैं उस दिन सोच में पड़ गया कि मोटिवेट करना क्या आसान है। तो फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी और वहां से मेरी बुक्स पढ़ने की जर्नी शुरू हुई, और अब तक लगभग 1800 के आसपास बुक पढ़ी। तो बुक्स से बहुत कुछ सीखा। तो पहली बार ऐसे स्कूल में गया, वहां पे बोला तो अच्छा लगा। मतलब जब बच्चों ने कहा कि सर आप अपना ऑटोग्राफ दे दो, क्योंकि उस समय सेल्फीज नहीं चलती थी, हम टॉकिंग अबाउट 2007 एंड 8, देयर वाज नो सेल्फीज ट्रेंड, देयर वाज नो इवन कैमरा इन द मोबाइल फोन्स, तो होते ही नहीं थे। तो ऑटोग्राफ का ट्रेंड था। तो छोटे छोटे बच्चे, 7th 8th 9th क्लास के बच्चे, सर ऑटोग्राफ दे दो। तो बड़ा अच्छा लगा यार, ये तो यार जिंदगी बहुत अच्छी है। फिर धीरे धीरे किसी स्कूल ने बुला लिया कि हमारे टीचर्स को ट्रेन कर दो, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दो। तो अब मैंने तो कभी किया नहीं था, फिर भी मैंने हाँ बोल दी। आई अगेन रेड मल्टीपल ब्लॉग्स, मल्टीपल बुक्स, गैदर द मटेरियल, टीचर ट्रेनिंग कर दी। देन सम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इनवाइटेड मी कि हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर दो। तो इस तरीके से ये मोटिवेशन का जर्नी शुरू हुआ। और जब ये शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यार सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर स्पीकर की तरह आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, दिस पर्टिकुलर थिंग्स नीड्स टू बी लर्न। और फिर मैंने सीखना शुरू किया कि अगर आप मोटिवेशन करते हो तो किस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ, उसी के लिए मैंने साइकोलॉजी पढ़ी फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। क्योंकि मोटिवेशन इज ऑल अबाउट ब्रेन ना, आप कहीं ना कहीं ब्रेन को एनर्जी दे रहे हो। फिर साइकोलॉजी से एक बात क्लियर हो गई, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। आप अगर किसी को मोटिवेट करते हो तो वो मोटिवेशन एनर्जी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रहती है। आपको खाली बातों से ये नहीं कहना आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये ताकत है, वो कर गया तो आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो कर गया तो आप कर सकते हो, बिल्कुल गलत है। उसकी अपनी कैपेबिलिटीज, अपने मिशन और अपने गोल्स थे। अगर आपको आपका वाई पता है तब आप कर सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरा, हाउ भी पता होना जरूरी है, वाई एंड हाउ। अगर वाई पता है तो हाउ कहीं ना कहीं आप ढूंढ लोगे। बट मोटिवेशन में क्या होता है, मोटिवेशन में सिर्फ ये होता है
कर लो, पैसा कमा लो, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, आपके पास भी हो सकता है, मैंने जीरो से शुरू किया। दिस इज नॉट द वे। आपको बताना पड़ेगा कि आपने कैसे किया और सामने वाले को क्या क्या करने की जरूरत है। या तो आप हाउ बताओ या उसको वाई बताओ कि करना क्यों है। तो नहीं तो मोटिवेशन काम नहीं करता। तब जाके फिर मैंने अपने नाम के सामने मोटिवेशनल स्पीकर हटा दिया और प्रोफेशनल स्पीकर लिख दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया कि मोटिवेशन इज जीरो, मोटिवेशन डज नॉट वर्क, व्हाट वर्क्स इज स्ट्रैटेजी। तो फिर प्रोफेशनल स्पीकिंग के अंदर धीरे धीरे स्ट्रैटेजीज आई। फिर उसके बाद कभी मैं बिजनेस कोच बना, क्योंकि मैं तो हमेशा हाँ बोलता रहा ना चीजों को। तो बिजनेस कोचिंग सीखी, बिजनेस कोचिंग की। फिर कहीं ना कहीं एंड में जाके मुझे अपना पता लगा कि पंकज, पूरी जर्नी और जो तेरे पास स्ट्रैटेजी है सबको मिला दिया जाए तो आप लोगों की परफॉर्मेंस में मदद कर सकते हो। देन अल्टीमेटली आई बिकेम अ प्रोफेशनल स्पीकर एंड अ परफॉर्मेंस पीक परफॉर्मेंस कोच। और फिर जब आपको अपनी नीश मिल जाती है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना शुरू कर देते हो, तब कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लोग जानने भी लग जाते हैं। थोड़ी सी इसमें मेहनत होती है, क्योंकि अब मैं मोटिवेशनल स्पीचेस को मना करने लग गया था। मैं कहने लग गया था भाई, आई हेल्प पीपल परफॉर्मिंग बेटर। स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज और उसके बाद छोटी मोटी कंपनीज जो मुझे बुलाती थी, उनको पीक परफॉर्मेंस बताना शुरू किया। फिर इसके ऊपर एक बुक लिखी। अल्टीमेटली आई बिकेम द मेंबर ऑफ PSA, प्रोफेशनल स्पीकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद तो लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि जब वहां पे मैं बोला एक एसोसिएशन में पूरे इंडिया में, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, वहां पे कुछ इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज किए। फिर दूसरी कंट्रीज वाले भी जानने लगे, दे स्टार्टेड इनवाइटिंग मी। देन आई बिकेम द मेंबर ऑफ एशिया प्रोफेशनल स्पीकर सिंगापुर। तो वहां पर अब क्या होता है, नेटवर्क मैटर्स अ लॉट। आई लव स्पीकिंग, मुझे तो बोलना पसंद है। जब मैं सिंगापुर गया, देयर आई केम अक्रॉस द स्पीकर्स एंड द कोचेस, दे हैड कम फ्रॉम द ऑल डिफरेंट कंट्रीज। आई बिल्ड अप द नेटवर्क। और जब आप किसी से ऑथेंटिक बात करते हो ना, जब लोगों को अच्छा लगता है, जब आप ओरिजिनल होते हो, नेचुरल होते हो, आप कहीं उसमें आर्टिफिशियल चीजें ऐड नहीं करते, तब कनेक्टिविटी बहुत इजी होती है। एंड देन आई वाज इनवाइटेड टू फिलीपींस एंड देन टू मेनी अदर कंट्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑथेंटिसिटी। किसी कंट्री में किसी स्पीकर नहीं बुलाया। अब किसी, सपोज करो कि देयर इज अ प्रोग्राम हैपनिंग इन नाइबिया और वहां पे नाइबिया का एक स्पीकर बोल रहा है। कंपनी की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस को बढ़ा दे। तो नाइबिया स्पीकर सेज यस, आई नो वन पर्सन हु कैन हेल्प इन दैट। देन ही गेव मी द फोन कॉल एंड देन आई वेंट देयर। तो नेटवर्क देन हेल्प्स यू टू ग्रो। तो आई बिलीव योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो अपने नेटवर्क को आपको फ्लरिश करना है। इट वर्क्स लाइक अ ट्री। और जितनी ब्रांचेस उसकी होती जाएंगी, उतने उसके ऊपर फ्रूट्स लगते जाएंगे। लोग पैसे के लिए अपने रिलेशनशिप्स खो देते हैं, बट ये नेटवर्क वाला जो रिलेशनशिप्स है ना, हमें कभी खोना नहीं चाहिए। कम मिले पैसा, तब भी नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जाना चाहिए। दैट हेल्प्स अ लॉट। There's a एंड lot of दिस इज हाउ learning from मैं you. Yeah, sorry Pankaj. There's a lot of learning. मतलब ऐसा लगता है ना बस आपको सुनते रहे. अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है थैंक यू। कि आप बस बात करते रहो, मैं बस सुनती रहो. There's so much to learn. Like मुझे लगता है ये इंटरव्यू बहुत काफी नहीं है. Like it's going to be 20-25 minutes whatever. It's not enough. Like इतना लर्निंग है आपके पास क्योंकि आपने जिंदगी देखी है, बहुत करीब से देखी है. मतलब उस मुकाम से आप जहाँ तक आज पहुंचे हो, you know, from where you have come. So I can understand there has been a lot of struggle, a lot of push or some, you know, your mindset always. Like my theme is zero to hero. So zero to hero, you have actually proved कि हालात अगर सही नहीं है, फिर भी हम अपने आप को वहां तक हीरो के मुकाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं? By keeping the right attitude, by keeping the right mindset. So apart from this, you know, और आप क्या बताना चाहोगे लोगों का, इन द सेंस व्यूअर्स, लाइक दे कैन बी किड्स, दे कैन बी एल्डर्स, लाइक मिलेनियल्स, आजकल बच्चे who are getting addicted to social media. You know, you must be seeing so many because you have an institute of your own. So how do you, you know, what would you like to tell them more, and how would you like to guide them, I would say rather. सी, जहां तक सोशल मीडिया की बात है, सो वी एज अ स्पीकर आर आल्सो वेरी हैबिचुअल ऑफ सोशल मीडिया। हम हर छोटी छोटी चीजों को पोस्ट करते हैं। दो मैंने पिछले 8 महीने से एक चीज करना शुरू किया है कि मैं आई हैव स्टॉप्ड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस।
मेरे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो कलीग्स है उन्होंने कहा है पंकज बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा काम ही लोगों से कनेक्टिविटी में चलता है। जैसे अभी अभी मैंने नेटवर्क की बात की थी, तो अब मुझे एक समय पे रियलाइज हुआ, सोशल मीडिया पे अगर हम इतना समय लगा रहे हैं तो हमें अपने ऊपर रिसर्च और अपने टॉपिक पे रिसर्च करने का समय कम लगता है, क्योंकि डेली आधा घंटे से 1 घंटा सोशल मीडिया पे चला जाएगा। फिर आपका 5 6 7 आवर्स अपनी जो प्रोफेशनल वर्किंग है, आई रन एन इंस्टीट्यूट, वहां चला जाएगा। फिर फैमिली को वक्त चाहिए। तो मैंने वो सोशल मीडिया का टाइम निकाल के अब रिसर्च को दे दिया। इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि प्रायोरिटीज हमें डिसाइड करनी होती है। अब जो यंग है, यूथ है, उनको ये बात बहुत बोरिंग लगेगी, बिकॉज एवरीवन कम्स एंड टेल्स देम स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया, आई एम टेलिंग यू, ask yourself once, what benefit I will get if I post this picture. Ask yourself once, if you are investing your 30 minutes on social media, are you getting out of it something? आपको खुद को एक आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक अंदर से, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, unless you realize yourself something, no one can help you to get rid of any addiction, and social media is addiction. इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे नोटिफिकेशंस ऑफ करके रख दो। This is not only for the youth, this is for you, me, this is for everyone. I've seen nowadays old people stay on the WhatsApp more than the you young people. Young people stay on Instagram more than Facebook. अगर हम सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, हर तरह का, मैसेज का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो एक टेम्पटेशन खत्म हो जाती है कि कुछ अब रिंग कुछ नहीं होगा तो टेम्पटेशन नहीं होगी। और फिर उसके डे टाइम में, आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप यूजिंग इट, मैं क्या कह रहा हूँ, एक टाइम फिक्स कर दो कि मैं सुबह उठूंगा, अपना काम करूंगा, उसके बाद 8:45 से 9 o'clock तक अपना सोशल मीडिया चेक कर लूंगा, मैसेजेस चेक करूंगा, ईमेल्स चेक करूंगा, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, सब आएगा। अब आपको पता है कि आपकी फ्रीक्वेंसीज क्या है ईमेल्स और मैसेजेस आने की, आपको लगता है कि ये तो बहुत कम आती हैं, तो पहले 8:45 to 9 o'clock चेक कर लो, उसके बाद आफ्टरनून लंच टाइम पे 5 मिनट के लिए चेक कर लो, फिर इवनिंग टी टाइम पे 5 मिनट के लिए चेक कर लो, फिर सोने से पहले एक बार चेक करो। तो उससे क्या होगा कि पूरा दिन सोशल मीडिया पे रहना बंद हो जाएगा। आपका टाइम फिक्स हो गया, हर समय आपका हाथ इस पे नहीं चलेगा, मोबाइल फोन पे। दैट हेल्प्स यू, दैट हैज हेल्प मी अ लॉट। और इससे मैं बुक रीडिंग भी ज्यादा कर पा रहा हूँ। So one thing I would tell you, use social media to utilize is not, do not let social media misuse you, क्योंकि आपकी एक्सेस यूज किसी और को अमीर बना रहा है, बट इन रियलिटी आपको गरीब बना रहा है। नॉलेज से गरीब बन रहे हो, समय से गरीब बन रहे हो। सो डू नॉट लेट ओनली मार्क जुकरबर्ग become a rich person. We deserve to be rich, rich with thoughts, rich with lofty ideas, and rich with our own rules and regulations. तो उन चीजों से रिच आप तभी बनोगे जब छोटी छोटी कंट्रोल करना शुरू करोगे। दिस इज हाउ द यू गिव बर्थ टू सेल्फ लीडरशिप। इसी को, इफ यू स्टार्ट लीडिंग योर सेल्फ, यू आर एड्रेस्ड एज अ सेल्फ लीडरशिप। सो तभी तो आप सेल्फ लीडर बनोगे। So this is how you need to tackle with the social media. And as you said, what would you advise everyone? तो सोशल मीडिया वाली एडवाइस तो मेरे ख्याल से सबके लिए काम करेगी, सबके लिए काम करेगी। जैसे अभी मैं व्हाट्सएप बहुत कम यूज करता हूँ, बहुत कम यूज करता हूँ। मेरा जो नंबर, जिस नंबर से इवन हमने बात की, वो नंबर बहुत ही रेयरली मैं यूज करता हूँ। मुझे पता लगा कि हाँ, टुडे इज द शो, तो कल मैंने यूज किया, उसको देखा। अदरवाइज उसके ऊपर अगर 1000 मैसेजेस हैं तो हैं, बहुत अर्जेंट मैसेज होगा। अर्जेंट मैसेज कहाँ से आता है? आपकी फैमिली से, फर्स्ट रिलेटिव से। और अर्जेंट मैसेज कहाँ से आएगा? आपके ऑफिस से। तो उनको आप एक अलग नंबर देकर रखो, हाँ भाई, इफ देयर इज इमरजेंसी, इस नंबर पे मुझे फोन कर लो और इस नंबर पे मुझे मैसेज कर लो, आई विल चेक। बाकी सब छोड़ दो। तो दिस इज हाउ यू मैनेज योर लाइफ, यू मैनेज योर प्रायोरिटीज। तो इसमें सबसे अहम चीज आती है प्रायोरिटीज। आई स्टार्टेड द सोशल मीडिया विद द सेम थिंग, प्रायोरिटीज। एक बार प्रायोरिटीज आ गई तो सारी चीजें मैनेज करना आसान हो जाता सही है। आई थिंक दिस इज अ बिग टेक अवे फ्रॉम फॉर एवरीवन, इट्स लाइक रियली अमेजिंग। क्योंकि सब सिर्फ कहते हैं कि मत देखो या मत करो, बट यू हैव लिटरली गिवन देम हाउ, हाउ टू मैनेज इट। देखिए, बट कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, इट्स अमेजिंग। एंड वन मोर स्टोरी यू हैड शेयर्ड पंकज, विच वाज रियली अमेजिंग। एंड जैसे आपको सुबह उठना था,
उसके लिए आपने कुछ किया था. I think this is like shows your commitment, your dedication. One last story from you about that, which will give a lesson to everyone. यू आस्क मी कि मुझे सुबह उठना था, तो हाउ आई डिटरमाइन माई सेल्फ टू वेक अप एंड आई वोक अप. सी इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट आई टेक मॉर्निंग 5:30 क्लास मंडे टू फ्राइडे, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी होता है. बट सैटरडे को आई स्लीप टिल 8 o'clock. बट टुडे इज अ सैटरडे. बाकी दिन में मैं बिजी रहता हूँ, सुबह क्लासेस होती है, तो सैटरडे को आई कंप्लीट माई स्लीप. बट आज व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, जैसे आज हमारा इंटरव्यू था, तो पहले तो मैंने मेरे फोन के अंदर कल अलार्म, परसों ही अलार्म फिट कर दिया था जब हमारी लास्ट बात हुई थी, कि वो फ्राइडे को 2 से 3 बार मुझे रिमाइंड कराएगा कि व्हाट्सएप चेक कर लो, कल आपका एक सेशन है. तो फर्स्ट थिंग हैपन दैट. और आज सुबह उठना है, तो आई टोल्ड माई पिलो, आई डिड नॉट सेट द अलार्म. मैंने कहा भाई सुबह आई हैव एन इंटरव्यू एट 6:45, तो वेक मी अप एट 6, ताकि मैं नहा धो के तैयार हो जाऊं. और यू वुड बी सरप्राइज, मुझे तो 5:30 उठने की आदत है ना. तो आई वोक अप एट 5 बजे उठने की आदत है, 5:30 तो मैं सेशन लेता हूँ. आई वोक अप एट 5:15 एंड देन आई वाज सिटिंग इन माय बेडरूम, कि एट 6 आई लीव माय बेड एंड देन आई विल गो एंड टेक बाथ. तो उसमें होता क्या है कि वंस यू नो व्हाट यू नीड टू डू, और वंस योर ब्रेन, हमें क्या है कि अगर किसी को भी 6:30 उठना है या 6 उठना है या 5 उठना है, तो हम कहते हैं 5 नहीं तो 5:15 उठ ही जाएंगे. हम ये कह के सोते हैं रात को. अब ब्रेन को पता है भाई ये तो पहले से ही लेजी है, ये कह रहा है 5 नहीं तो 5:15 उठ ही जाएंगे, तो ब्रेन आपको उठाता नहीं. पहली चीज. दूसरी दूसरी चीज, ये यूनिवर्स को आप जो बताते हो ना, वो यूनिवर्स साथ लग जाता है उस काम को पूरा करने में. तो मैं क्या करता हूँ, अपने रूम को बता देता हूँ मुझे इस समय ये काम करना है. अपने पिल्लो को बता देता हूँ मुझे ये काम करना है. माई वाइफ लाफ्स एट मी, बट वो अब 5 साल होने वाली है हमारी शादी को, उसको पता लग गया भाई औरों के लिए काम करे ना करे, इनके लिए ये चीज काम करती है. एंड विदाउट सेटिंग अलार्म, देन रूम एनर्जी वाइब्स, ये पूरी हमारे आपके चारों तरफ ना एक पावर है, जो पावर दिख नहीं रही है बट काम कर रही है. इस पावर को जो आप जो कहोगे, इस एनर्जी को जो आप कहोगे, इस हवा को जो आप कहोगे, वो काम आपके लिए करेगी. और उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यस दिस वर्क्स. तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ. जब भी कोई काम करना होता है, बीट लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग और समथिंग, तो आई टेल दिस यूनिवर्स कि आई नीड टू डू दिस एंड आई विल डू दिस. फिर मैं आंखें बंद करके अपने आप को देख भी लेता हूँ कि आई एम डूइंग दिस. अब मेरे ब्रेन को भी पता है, सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पता है, इस यूनिवर्स को भी पता है, मेरे पिल्लो को भी पता है, मेरी ओवरशीट और बेडशीट को भी पता है, तो वो सारे उठा देते हैं मुझे. आई डोंट नीड टू स्ट्रेस माई सेल्फ फॉर वेकिंग मी अप. दे डू वर्क फॉर मी. दिस रियली वर्क. बट अब बहुत सारी ऑडियंस को ऐसा लग रहा होगा क्या तकिया नुसी सी बातें हैं, ऐसा होता है. आप उसको यूज करके देखो, बट विश्वास रखो. अगर विश्वास रखोगे तो पत्थर में भी भगवान है, विश्वास नहीं रखोगे तो वो पत्थर है. असली वाला भगवान भी आपको लगेगा कि बहरूपिया है, तो वो पत्थर है. विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, ऑप्टिमिज्म सबसे बड़ा चीज होता है. Right. अगर आपको ट्रस्ट है ना किसी चीज पे, तो सारी कायनात मिल जाती है उस काम को पूरा करने के लिए. ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है अपने ऊपर, जिसको आप कह रहे हो उसके ऊपर, देन थिंग्स हैपन. Amazing. I I feel like I should continue this with one more series. There's a lot to learn from you, Pankaj. Like ऐसे मतलब थैंक यू सो मच. कहते हैं थैंक ना यू. मंत्रमुग्ध होके बस सुनना. ये हम सुबह गाइस फॉर योर मतलब सबको बताना चाहूंगी. वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन एट 6:45 a.m. in the morning. And he is like you have made my day. मतलब आज मुझे लगता है I'm just going to float in air. Like it's so much so much of learning and so much of takeaway. बहुत मतलब सच में बहुत सारी चीजें आपसे सीखने में. It's really आपके स्टूडेंट्स तो मतलब बहुत ब्लेस्ड है. थैंक यू. नहीं, वो जब चीजें लगातार उनको मिल जाती है ना, तो तो दे वैल्यू डोंट बहुत रियलाइज दैट, है ना. तो वी डू नॉट वैल्यू व्हाट वी हैव. और आज मुझे आप ऐसा फील करा रहे हो कि हाँ मेरे पास कुछ है, अदरवाइज मुझे भी नहीं फील होता. नहीं नहीं नहीं. मुझे भी नहीं सबके फील वो होता, स्टूडेंट को पोटेंशियल भी नहीं होता फील है. होता. सी हम कब मिले थे? आई थिंक 2 साल पहले. इट्स बीन हम्म. ऑलमोस्ट 2020. आई येट रिमेम्बर यू दैट एंड आई येट रिमेम्बर योर स्टोरीज. इट्स बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल, राइट? थैंक यू. थैंक यू. So, Pankaj, it was really nice speaking to you. And due to shortage of time, I have to end the हाँ जी. yes, I end the meeting here. But the interview was really awesome, and I know people are going to take a lot of things from here and understand and
Yes, Pankaj ji से अगर आप connect करना चाहते हो, I'm going to share the details in the description box. So please check out. And thank you for your time, energy. You have created a positive aura, right now for me and Thank for you so much. everyone. Thank you so much. So This was this these were the answers, but जब आप सही क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर सही आता है. अब अगर कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछेगा तो शायद आंसर उसी तरीके से आएगा. तो this I would give all the credit to you because everything depends on a question. NLP, Neuro Linguistic Programming by कहती है the right question can bring the right answer. yes, You are a super interviewer, super questions you ask. The way you ask the question that took all the answers in the right way. This could thanks not for happen without you. thanks for the credit. And definitely अगर host के बिना तो हो ही नहीं सकता था ना program. See, but हमने कुछ प्लान नहीं किया था. I just go with the flow. I always feel that जो story है उसके हिसाब से अगर हम चले तो it gets out more answers, And Right. really thank you for being on the show. And I would really like to learn more things from you again. So I Thank you so much. can't Thank you express so much. myself. I'm so happy right now. Thank you, Lina. Thank you so much. ये because of COVID we came across. उसके पहले तो मैं सिर्फ ऑफलाइन अलग अलग शहर में कोचिंग करते थे हम. So thanks to the COVID. मैं ये नहीं कहूँगा कि COVID बहुत अच्छा रहा, बट जिसने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी हैं, जिस उनको अपॉर्चुनिटीज मिली भी हैं. Right. और बहुत सारी avenues open हुए actually वो समय for everyone. And I've learned a lot. Video making, I had done course with Pankaj for video making, and I started making my videos from there. So thanks a lot for that. So thank you for Thank you. joining, So and let's we are winding up the show now. Yeah. Sorry, I would Great. be publishing this show on Tuesday at in the evening by 8:30. So thanks a lot for being on my show, and it was really amazing. A lot of learning for everyone. Thanks. Thank you so much. Thank you. Okay. Bye bye. So let's stay in a touch and let's take this program to another level. If you need me or if I need you, we'll get in a touch. Yes, sure. Thanks a lot. Thank you. Thank you. And thank you everyone. Thank you the audience for bearing me for around 25-30 minutes.